So, guys, welcome to the next session of our CCNP course. So, yesterday we went through all these points. जो basic stuff है OSPF का जो basic theory है वो theory हमने पढ़ा और we came to know about um, some of very important points about OSPF, some of very unique points about OSPF. यूनिक जब हम बात करते हैं तो EIGRP में या RIP में या अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें एरियाज नहीं थे, है ना. उसके अंदर ये LSA टाइप्स नहीं थे, एक ही टाइप का अपडेट था, है ना. तो काफी सेलिएंट फीचर्स के साथ में ये प्रोटोकॉल है और हमने कल उसमें से कुछ चीजें पढ़ी. Now today we'll continue with the lab part और lab के साथ ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग साथ साथ में डिस्कस करेंगे. So let's begin with that. We'll resume from the point where we left yesterday. है ना. So let's see what we did till yesterday. Today's session. See. R1 पे show IP OSPF neighbors. तो R1 के we have 3 neighbors on R1. Okay, and which 3 neighbors are these? These are R2, R4, and R3. Okay, so which is right? Okay, R1 has 3 neighbors. R2 on a fast Ethernet link where DRBDR election is also happening. ठीक है. अब राउटिंग भी हमने कर ली थी. शो आईपी राउट OSPF. लेट्स सी OSPF से कौन कौन से राउट्स R1 को मिल रहे हैं. तो आई एम गेटिंग R3's loop back, R4's loop back, R6 loop back. Where is R2's loop back? R2 का loop back नहीं आया, है ना. 3, 4, 5 R5 का loop back नहीं आया. So why those loop backs are not here? We'll see. We might not have advertised them, है ना. R2 का loop back नहीं है, R5 का नहीं है. So let's go to R2 and we'll check. Do show run section OSPF. Okay, so we have advertised only these 2 networks. We have not advertised loopback address of R2, so that's why it's not there. So network 2222 wildcard mask and area, this will go into area 0. Okay, R2 का loopback address जो है वो मैंने area 0 में advertise कर दिया. Okay, and then let's go to R5. R5. Okay, do show run section OSPF. Okay, so it's not advertised here also, है ना. इधर भी advertise नहीं है तो उसको advertise कर देते हैं और R5 का loopback को मैं area 2 में डाल देता हूँ. Okay. All right, so hopefully now R1 will get all the loopbacks. R2, R3, R4, R5, R6. Okay, R5 and R6. Okay, R5 and R6 वो उनका loopback जो है वो area 2 में है ना. तो area 2 से area 1 में आया, area 1 से area 0 and then to area 1. Okay, so that's why these networks are inter-area networks. If you see here 56, which is network between R5 R6 के बीच वाला network जो है ये भी inter-area route है, ये भी inter-area, ये भी inter-area. So it's like that. Now is there any doubt till now? जो O से दिखा रहा है वो इंटर
इंट्रा एरिया रूट है जो IA से दिखा रहा है, वो इंटर एरिया रूट है। अभी आप ये देखेंगे R1 का राउटिंग टेबल अभी हम लोग देख रहे हैं, तो R1 में R2 के लूप बैक एड्रेस को O से दिखा रहा है। R1 में R2 के लूप बैक एड्रेस को O से दिखा रहा है, यानी कि इट्स इन माई एरिया ओनली। वाई? क्या ये R3 में या R4 में भी 2222 को O से दिखाएगा या OIA से दिखाएगा? My question is, on R1 it is showing 2222 as an OSPF same area route, whereas will it remain same on R3 and R4 as well? This for 2222? Will it be same? Yes or no? No, it will show OIA. Okay. So you guys are correct. So let's go to R3 and check. R3 पे चेक करता हूं, तो R3 पे आप देखोगे ज्यादातर रूट्स इंक्लूडिंग दिस 2222 इट इज शोइंग via OIA, right? 555566, because R3 जो है, R3 के सारे interfaces, all interfaces of R3, all when I'm saying it's just loopback and the serial 0 by 1, because we are not using the serial 0 by 0. So just to avoid any kind of confusion, what I'll do is interface serial 0 by 3, let's shut it down. Okay, ठीक है, इसको shut down कर दिया। 0 by 3 नहीं, 0 by 0, I'm sorry, 0 by 0 shut down। ठीक है, इसको shut down में कर दिया। Okay, so show IP route, do show IP route OSPF. Okay, so R3 is getting all the routes, router 1's loopback, 2, 3 तो खुद है ही, 4, 5, 6 and then some other routes. 1 belongs to this area itself. ये जो 14 वाला है ये इसी एरिया में है, एरिया 1 में, so that is fine. This is internal route to this area, then the other routes. Now we will move forward. I hope this is clear to all. Next क्या है आज, ये जो आप देख रहे हैं इसका administrative distance और cost है ना, तो cost is like it all depends on bandwidth. Okay, 65, 75, 129 whatever you are seeing here, वो सारा जो है वो bandwidth के आधार पे निकाला गया cost है। It's ये जो कॉस्ट है ये भी अच्छा दिख रहा है। इट्स नॉट लाइक अ लार्ज वैल्यू लाइक EIGRP यूज्ड टू कम अप विद, दिस स्मॉल वैल्यू जस्ट बेस्ड ऑन बैंडविड्थ ऑफ द इंटरफेसेस। ओके, नाउ आई विल डू वन थिंग। अभी ये जो R3 है, मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है? नेक्स्ट टास्क है एरिया 1 जो है उसको मैं सॉरी ये जो R6 है उसको मैं ASBR बनाऊंगा। आई विल कॉन्फ़िगर R6 एज ASBR। नाउ हाउ आई कैन डू दैट? R6 के लूपबैक इंटरफेस को मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा OSPF में। R6 के लूपबैक इंटरफेसेस को मैं OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो R6 will be considered as ASBR of this OSPF domain. Any doubt in that? आगे कोई राउटर कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड होता है तभी वो ASBR कहलाता है। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे
एक्चुअल में करना क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में राउटर लगा के भी कर सकता हूँ उसके नेटवर्क्स, या फिर मैं इसी के लूप बैक को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूं, इट्स वन इन द सेम थिंग, है ना। अभी इतना बेसिक बेसिक चीजों के बारे में वी शुड नॉट बॉदर मच अबाउट दैट। यू I assume that you all are mature enough now to understand these things. So let's go to R6. I'll go to R6. Do show IP interface brief. इसके कितने loopback interfaces है, कौन कौन से हैं? Let's see. So एक loopback interface है इसका 6666, है ना। और बना देते हैं एक दो। Interface loopback 1 IP address 6.6.7.6. Okay. Interface loopback 2 IP address 6686. Okay. So 3 loopback interfaces. Loopback 0, loopback 1, loopback 2, and do show IP interface brief, exclude unassigned. Okay, so 3 loopback interfaces 66, 76, 86. अभी क्या करता हूं मैं इन तीनों इंटरफेसेस को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, I'll create an access list। वो एक्सेस लिस्ट में ये तीनों को मैच करूंगा, फिर मैं बनाऊंगा रूट मैप। रूट मैप में उस एक्सेस लिस्ट को कॉल करूंगा और फिर उस रूट मैप को मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन में उस रूट मैप को कॉल करूंगा। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट क्या करूंगा, स्टैटिक, और उसमें वो रूट मैप लगा दूंगा। सो जस्ट बी विद मी। IP access list standard redis permit 6.6.6.6। अच्छा अभी देखो, फिर मैं परमिट कर रहा हूं, मेरे को क्या करना है, ये परमिट ही करना है। परमिट 6.6.7.6, okay, and permit 6.6.8.6। okay, so मेरी एक्सेस लिस्ट बन गई जिसमें मैंने तीनों लूप बैक एड्रेसेस को कॉल कर लिया, मैच करा लिया, परमिट कर दिया। Now I'll go to root map। root map बनाते हैं। Let's create a root map। Read is same name, match IP address। This is the command to match an access list। एक access list को मैच करने के लिए root map में ये कमांड होती है, match IP address और access list का नाम। okay, exit। now router OSPF1 redistribute static root map redis and a keyword subnets। अभी ये मैंने क्यों दिया है, देखो ये कमांड क्या है, आपको ये ERP के टाइम भी हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन किया था। रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टैटिक राउट्स। कौन से स्टैटिक राउट्स, सॉरी, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड करना है। वेट आई जस्ट मेड अ मिस्टेक। रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, देन रूट मैप redis and subnets। okay, I'm sorry, we are redistributing, what we are redistributing, connected routes, okay, to this router। तो loopback interfaces इसके connected routes हैं। वो connected route सारे नहीं चाहिए, क्योंकि connected route तो ये वाला भी है जो R5 और R6 के बीच में है, but I don't want to redistribute this route। so connected routes which are matched in this route map। okay, which route map, redis and subnets। subnets मतलब consider subnets for redistribution into OSPF। means हमें जो redistribution करना है तो classless routes या classful routes, तो subnets यानी classless way में we have to redistribute। so don't forget to mention this subnets, it's a very important key word in redistribution।
हम अगर चाहे तो अभी मैट्रिक भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैट्रिक कितना मैट्रिक के साथ में रिडिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी आ जाएगा, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू मैट्रिक राइट नाउ, आई विल जस्ट हिट एंटर हियर। ओके, हो गया रिडिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स वेरीफाई इट ऑन R1। R1 पे गया मैं, शो IP रूट OSPF। Yeah, so now you will see few more roots: 6.6.6.6, 6.6.7.6, 8.6. So now you can see because 6.6.6.6 को तो मैंने नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज किया हुआ है, तो वो रिडिस्ट्रीब्यूशन पे प्रेसिडेंस ले लेता है, तो उसको तो इंटर एरिया रूट दिखा रहा है, लेकिन 6676 और 86 को क्या दिखा रहा है? OE2 एंड E2 बोले तो एक्सटर्नल टाइप 2 रूट्स, OSPF एक्सटर्नल टाइप 2 रूट्स। शो IP रूट, simple command. Now you will see, look here, O means OSPF, E2 means OSPF external type 2, E1 means OSPF external type 1, okay, and IA means OSPF inter area route, okay. So all these are OSPF route types. So now what I want is I want to see, so 6666 is OSPF इंटर एरिया। वाई? क्योंकि उसको मैंने नेटवर्क कमांड से यहाँ पर एडवर्टाइज किया है। अगर आप उधर नो नेटवर्क 6.6.6.6.0.0.0 एरिया 2 कर देंगे तो अभी क्या होगा? अभी वो रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, और एक्सटर्नल रूट के जैसे मेरे को इधर दिखाई देगा। I cannot see it. It's just 666. आ जाएगा। शो रूट, शो IP रूट OSPF 7686. Why 66 is not there? Let's check OSPF config, router ID this, network is this, okay, redistribute connected, route map redis, okay, show map, route map is saying match this access list redis, so show access list. In this access list, there are 3 routes: 6666, 76, and 86. Okay, so clear IP OSPF, not OSPF, clear IP route star. Okay, let's see. Show access list. ओके, सो प्रॉब्लम क्या है? 6666 जो है वो एडवर्टाइज में जब किया तो हो रहा था व्हेन आई गिव नो नेटवर्क, तो उसके बाद वो एडवर्टाइज होना बंद हो गया। तो एक्सपेक्टेड था कि वो इधर से मैच होके और रिडिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा, पर वो नहीं हो रहा है ना, जबकि बाकी दोनों हो रहे हैं। एक्सेस लिस्ट में मैचेस भी दिखा रहा है, टू मैचेस, वेयर एज देयर इज नो मैच हियर विद 6666। प्रॉब्लम क्या है कि एक्सेस लिस्ट में शो रन begin access list. So you'll see here in access list the statement that we have given,
right? Permit 6666 and then I gave 0000. Permit 66760000 यानी एग्जैक्ट मैच के लिए मैं बोला था इसको। लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, शो रन इंटरफेस लूपबैक 0 पे आप आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क देखेंगे तो दिस इज 24, वेयर एज लूपबैक 1 पे कितना है 32 और लूपबैक 2 पे कितना है 32। तो मैं क्या कर दूं, मैं इंटरफेस लूपबैक 0 पे जाके आईपी एड्रेस में सबनेट मास्क को इसका भी 32 बना देता हूं और अब सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। अब R1 पे रूट चेक कर लो। R1 6666 is here as OSPF external route। ठीक है जी, हो गई ट्रबल शूटिंग, समझ में आया। जब भी आप मैच करते हो तो वो एग्जैक्ट मैच करता है, सबनेट मास्क आपने कुछ और दे रखा है और मैच कुछ और करा रहे हो एक्सेस लिस्ट में, तो वो काम नहीं करेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। OSPF external 2 routes are now here। तो एक्सटर्नल रूट्स में दो टाइप है, एक्सटर्नल टाइप 1 टाइप 2, है ना। व्हाट इज टाइप 1 एंड टाइप 2? सो बिफोर ये जो रूट अभी रीडिस्ट्रीब्यूट होके आ रहा है तो कितना मैट्रिक के साथ में आ रहा है 20, और रीडिस्ट्रीब्यूट होने से पहले ये जब रूट आ रहा था मेरे पास में तो वो कितना मैट्रिक के साथ में आ रहा था? लेट्स गो। आप ये देख रहे हो कितना मैट्रिक है 85, है ना। पहले 85 मैट्रिक से आ रहा था, अभी ये कितना मैट्रिक से आ रहा है? बाकी दोनों रूट देख रहे हो, जो एक्सटर्नल टाइप 2 रूट है दे आर कमिंग विद मैट्रिक 20, बट माय इंटर एरिया रूट इज कमिंग विद मैट्रिक 85। व्हाई? जैसे ही ये भी एक्सटर्नल टाइप 2 रूट बन के आया तो इसका मैट्रिक भी कितना है 20। Anyone would like to give a try that what is, why this is happening? ऐसा क्यों हो रहा है? Internal route cost is not added। ASBR to destination। ओके, और कुछ? All right, so see what is happening here। जो OSPF एक्सटर्नल टाइप 2 राउट्स होते हैं वो राउट्स का एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है 20। फिक्स्ड है जी, ये चाहे कितना भी दूर ले जाओ रूट को, वो कॉस्ट कितना दिखाएगा 20, ना कम ना ज्यादा। जबकि पहले जो रूट आ रहा था विद कॉस्ट 85, इंटर एरिया जो रूट आ रहा था वो दिखाता एग्जैक्ट कॉस्ट, ये राउटर से ये राउटर तक का कितना कॉस्ट है, फिर उससे आगे कितना कॉस्ट है वो ऐड हो जाएगा, फिर उससे आगे कितना कॉस्ट है वो ऐड हो जाएगा, तो प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, फाइनल कॉस्ट 85। But with external type route, when we redistribute any routes as external type 2 routes, the metric, the cost will remain always 20, no matter how far your route is traveling as in an update. So will always remain 20 fixed cost। जबकि एक्सटर्नल टाइप 1, अगर यही रूट एक्सटर्नल टाइप 1 होता तो उसमें आपको कॉस्ट जो है वो एक्चुअल कॉस्ट दिखता, यानी ये एक्चुअल कॉस्ट ऐड होके दिस प्लस दिस लाइक दैट 85। सो एक्सटर्नल टाइप 2 रूट्स आर द रूट्स वेयर द कॉस्ट रिमेन्स सेम, which is 20,
एंड एक्सटर्नल टाइप 1 रूट्स जो है उनका कॉस्ट ऐड होता जाता है एंड दे विल शो यू द एक्चुअल कॉस्ट टू रीच टू दैट नेटवर्क. सो ये टाइप 2 जो है दैट इज द डिफॉल्ट टाइप इन OSPF redistribution because we didn't mention any type while redistributing. हमने क्या किया था redistribution के टाइम पे कोई टाइप नहीं बताया था उसको, लेकिन तो फिर इसका मतलब टाइप 2 इज द डिफॉल्ट OSPF एक्सटर्नल रूट टाइप. तो टाइप कैसे चेंज करते हैं? राउटर OSPF में गए हम, राउटर OSPF 1 redistribute connected route map redis and then subnets metric type. You see this metric type? So metric type question mark type 1 or type 2, what do you want? So type 2 is the default type, let's make it type 1. Type 1 किया और इधर आप देखो these are external type 1 routes now, okay, and the metric which you are seeing here is 104 via which interface? Fast Ethernet 0x0. Okay, if you will see this route on R2, do show IP route OSPF, तो इधर भी एक्सटर्नल टाइप 1 है और कॉस्ट कितना है 94, इधर कितना है 104, ठीक है ना. ये 10 MB का लिंक है फास्ट इथरनेट, सॉरी 100 MB का लिंक है, तो कॉस्ट कितना ऐड हुआ इस लिंक का? R2 पे 94 आ रहा है, इसका प्लस 10 करके और 104 इधर आ रहा है, ओके, ऑन R1. So this is how it's working. If you would have seen on R2 when the type was E2, इधर भी कॉस्ट कितना दिखा था 20, इधर भी कॉस्ट कितना दिखा रहा था 20. वो सब जगह you can verify in your, when you will do your labs you can verify this, okay. सब जगह 20 20 20 दिखाएगा on R2, on R5, on R1, on R3, R4, everywhere 20 20 20. Now it is this. If you check it on R3 पे चेक कीजिए, yes it is getting the routes via this is external type 1 and this is the cost, okay. So cost is getting added to the routes, all right. So OSPF routes, OSPF inter area routes, OSPF external routes, type 1 and type 2 and their cost related factors and all. Out in this, समझ आ गया? Yes or no? Just quickly type on the chat. Okay, so yeah, good. Okay, Karan, Pushkar, Priyanka, RS, MT, Rajesh, Virendra. All right. So cool. So let me know if anyone has any doubt. We can I can repeat it. I can try to explain it in some other way or anything. Just let me know. All right. So the next thing is OSPF में. Let's go to our diagram. Yeah, in OSPF we will look at the database now. Okay, OSPF database. तो सबसे पहले मैं database चेक करता हूं R2 का. Okay, it's a router having all of its interfaces in backbone area. तो इसके पास में सारा ये सभी एरियाज का मालूम है, कौन एरिया में क्या है कैसा है, because this is the backbone area and this router is a transit router for all the traffic between area 1 and area 2.
तो R2 पे डेटाबेस चेक करते हैं, शो IP OSPF database. Now this database is, अब ये डेटाबेस को थोड़ा सा पढ़ना सीखना, कैसे इसको पढ़ते हैं, how to read and understand what exactly OSPF has in its database. So OSPF router with router ID 2222 and process ID 1. R2 पे router ID is 2222 and process ID is 1. Process ID is same across all routers. We have kept for our ease. Process ID it's not necessary to keep it same on all the routers. It's a local significant value. So सबसे पहले इधर क्या है, राउटर लिंक स्टेट्स एरिया 0. ओके, सो एरिया 0 में कौन कौन से राउटर्स, दिस इज एरिया 0 ना, तो कौन कौन से लिंक्स, ये जो आप देख रहे हो राउटर लिंक स्टेट्स, दिस इज टाइप 1 LSA. विच टाइप ऑफ LSA इट इज? टाइप 1 LSA. ओके, और इसमें ये कह रहा है कि आप डायग्राम देखेंगे तो कौन कौन से राउटर्स के लिंक्स है एरिया 0 में, R2, R1, R5. ओके, सो R1, R2, R5, ठीक है, ये एरिया 2 में ये सारे लिंक्स है. ओके, एंड इनका एज, नाउ व्हाट दिस एज is like, how till how long they are in this area. It's I guess in it's in minutes or something, I'm not sure, just go back and have a look. Sequence number जो है वो जब भी कभी कोई अपडेट आता है, वो हर अपडेट जो है वो एक नए सीक्वेंस नंबर के साथ में आता है. तो आपके डिवाइस के पास में अगर कोई अपडेट आया विद सीक्वेंस नंबर 2, तो वो देखता मेरे डेटाबेस में पहले अपडेट जो है वो कौन से सीक्वेंस नंबर से है. अगर उसके पास में सीक्वेंस नंबर 1 का अपडेट है तो वो 2 वाला ले लेगा. मींस जब भी हायर वैल्यू के, हायर नंबर के साथ में अपडेट आएगा सीक्वेंस नंबर के साथ में, तो एक्सेप्ट कर लेगा. अगर लोअर नंबर के साथ में आएगा तो उसको इग्नोर कर देगा, और अगर इक्वल आया तो उसको भी इग्नोर कर देगा. ओनली हायर नंबर सीक्वेंस नंबर के साथ में अगर कोई अपडेट आ रहा है तो उसको ही लेगा. ठीक है, एंड व्हाट एल्स, दिस इज checksum, some value associated with updates. लिंक, ये इसको बाद में बताएंगे. व्हाट इज दिस. कम टू द नेक्स्ट वन. Okay, yeah, I'll repeat Omkarji. What happens is, ये जो router link state जो है, this is LSA type 1, है ना, और एरिया 0 की अभी हम बात कर रहे हैं क्योंकि R2 पे हम लोग ये डेटाबेस देख रहे हैं. तो R2 में जो टाइप 1 LSA से डेटाबेस ये बना रहा है, वो डेटाबेस में क्या है, R1, R2 और R3, ये 3 राउटर है जो जिनके इंटरफेसेस एरिया 0 में है. ठीक है, और ये एज है, मतलब कितने टाइम से ये रूट्स एडवर्टाइज कर रहे हैं, या ये LSA इसमें इसके डेटाबेस में है. और सीक्वेंस नंबर जो है वो हर अपडेट जब भी कोई राउटर भेजता है तो वो एक सीक्वेंस नंबर, नए सीक्वेंस नंबर, एक अपडेटेड सीक्वेंस नंबर के साथ में भेजता है. तो जो रिसीविंग राउटर है वो उस अपडेट को तभी लेगा जब वो सीक्वेंस नंबर अपडेट का एग्जिस्टिंग सीक्वेंस नंबर वाली जो भी अपडेट है उसके सीक्वेंस नंबर से हायर होगा. अगर लोअर होगा या इक्वल होगा तो उनको वो इग्नोर कर देगा. अगर हायर सीक्वेंस नंबर के साथ में अपडेट आएगा तो ही उसे एक्सेप्ट करेगा. That's what we discussed. This is type 2 LSA.
ओके, नेटवर्क लिंक एलएसए है ना। और टाइप 2 एलएसए जो है वो कहाँ चलता है, वो चलता है बीडीआर वाले सेगमेंट पे, यानी कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पे। तो ये हमारे डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क किधर है, ये वाला लिंक, ये देख रहे हैं R1 R2 के बीच में, ये कौन सा नेटवर्क है इधर, 10.1.12.0, ठीक है। तो 10.1.12.1 जो R1 है उधर से इसको एक टाइप 2 एलएसए मिल रहा है, ठीक है, विच इज ऑल्सो फाइन। ये है समरी नेट लिंक स्टेट्स, यानी समरी एलएसए, यानी कि टाइप 3। टाइप 3 एलएसए जो है उसमें क्या मिलता है राउटर को, इंटर एरिया रूट्स, है ना, दूसरे एरियाज में। तो इसको क्या मिल रहा है, इसको राउटर 1 से भी मिल रहा है, 3, 4, 5, है ना, ये सारे जो लिंक्स हैं ये सब लिंक्स इसको मिल रहे हैं। साथ में 10, 1, 13, 14 और 5, 6 आप ये देखेंगे, और जो इसको लिंक्स मिल रहे हैं 10, 1, 14, 13, 56, ओके, R2 को मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, टाइप 3 एलएसए में। टाइप 3 एलएसए में क्या मिलता है, दूसरे एरिया में जो नेटवर्क्स है वो, तो एरिया जीरो में है सारे इंटरफेस R2 के, तो एरिया 1 और एरिया 2 के जो भी नेटवर्क्स इसको मिल रहे हैं वो सारे टाइप 3 एलएसए से ही मिलेंगे, समरी एलएसए से। तो चाहे वो R4 का, R1 का, R6 का, R3 का लूप बैक एड्रेस हो, चाहे वो ये वाले लिंक्स हो, ठीक है, ये तीनों। तो ये सब टाइप 3 एलएसए से मिल रहे हैं इसको, समरी एलएसए। फिर है समरी एएसबीआर वाला एलएसए, मतलब टाइप 4 एलएसए। ये एएसबीआर, एरिया ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर वाला जो एलएसए है वो टाइप 4। तो कौन है साहब एएसबीआर, 6666, कौन है साहब 6666, ये है ना, राउटर 6, यही है एएसबीआर, इसी पे रिडिस्ट्रीब्यूट किए हमने राउट्स। और ये टाइप 4 एलएसए भेज कौन रहा मुझे, R5। R5 तो है एबीआर, हमने यही बात करी थी कि एबीआर जनरेट करता है एलएसए टाइप 4, और उसमें वो बताता है कि कौन है एएसबीआर, ठीक है जी। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ टाइप 4 एलएसए। और फिर आती है फाइनली टाइप 5 एलएसए, और टाइप 5 एलएसए में ये बताता है 3 लिंक है, 6666, 76 और 86, और इन तीनों को एडवर्टाइज कौन कर रहा है, जो हमारा एएसबीआर है ना। तो ये 3 नेटवर्क जो है ये टाइप 5 एलएसए से मिल रहे हैं मुझे। जितना मैं बोला उसमें कोई डाउट है तो पूछो मुझे आप। दिस ओएसपीएफ डेटाबेस है ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, पांचों तरह का एलएसए मैं आपको दिखा दिया हूं। टाइप 7 एलएसए नहीं दिखा है, क्यों, क्योंकि टाइप 7 सिर्फ एनएसएसए, जब नॉट सो स्टेबल एरिया बनाएंगे तब मिलेगा। अभी तक हमारे नॉर्मल एरियाज है, तो नॉर्मल एरियाज में ये 5 तरह का एलएसए आपको दिख सकता है। इज इट ओके, यस और नो, जस्ट टाइप एंड लेट मी नो। लिंक आईडी मींस here is the IP address of the link exist on the router. link मतलब आपका जो means is the IP address of the एक second is the IP address of the link exist on the, हाँ करेक्ट, IP address of the link जब मैं कहता हूँ ना, तो मतलब वो नेटवर्क, वो लिंक, एक्चुअली ये सारे लिंक का ही खेल है ना OSPF में, कि ये लिंक, वो लिंक, लिंक बोले तो ये इनके बीच में लिंक, इनके बीच में लिंक, ये वाला लिंक, ये वाले लिंक, इनके जो लूप बैक एड्रेस है वो भी लिंक्स है ना। एवरी नेटवर्क इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद referred as links. So whatever is being advertised, okay, in type 1 LSA, it is getting router ID of these 3 links advertised by these routers, okay. And here if you will see R2 sorry type 2, जिसमें ये वाला लिंक जो है वो एडवर्टाइज हो रहा है, कौन राउटर कर रहा है ना। तो लिंक आईडी इज the IP address on the router, yeah, that's correct,
आप का जो टर्मिनोलॉजी आप बोले दैट इज करेक्ट. It's the IP address associated with the link of the advertising router. Correct. So, yeah, interface, correct. So the next thing is, मैं R ये जो एरिया 1 है इसको मैं स्टब बना देता हूं, है ना. एरिया 1 को मैं स्टब बना देता हूं और फिर देखते हैं इसमें कौन कौन से एलएससीज आते हैं, है ना. उससे पहले हम लोग देखेंगे R3 और R4 के ऊपर जो डेटाबेस बना है वो कैसा दिखता है. तो लेट्स गो टू R3. R2 का डेटाबेस हमने देखा, R3 पे डेटाबेस देखते हैं. शो IP OSPF डेटाबेस, है ना. तो R3 में कौन कौन से LSAs आ रहे हैं, मेजरली मुझे वही देखना है. इसके अंदर 5 तरह के LSA आ रहे थे, तो R3 में कौन कौन से LSA आएंगे बताइए. LSA टाइप 1 2 3 4 5, कौन कौन से LSA इसमें रहेंगे. Come on. If one prefix is coming from 2 ASBR, then which will install first and first is same. हाँ, तो अगर 2 ASBR से कोई लिंक आ रहा है भाई, एक राउटर, आप खुद को हमेशा एक राउटर समझिए. Suppose you are a router, okay, and when you are getting information of a route from 2 links, then what you will see, 2 लिंक सेम है क्या, रूट प्रीफिक्स इनका सेम है. अच्छा अच्छा, दोनों का सेम है. फिर मैं देखूंगा अच्छा ये किससे आ रहा है, OSPF या EIGRP किससे आ रहा है. अच्छा दोनों ही OSPF से आ रहे हैं. OSPF से कैसे आ रहा है, अच्छा एक्सटर्नल रूट आ रहा है. ओके ओके. कॉस्ट क्या है इनका, अच्छा अच्छा, कॉस्ट एक्सटर्नल टाइप 2 है, सेम ही है. ओहो अच्छा अच्छा. फिर क्या करें, फिर करना क्या है, लोड बैलेंस करो, है ना. सो इट्स वेरी सिंपल. Okay. All right, so let's check on R3. कोई जवाब तो आया नहीं. Let's check on R3. R3 है टाइप 1 LSA, टाइप 3 LSA, टाइप 4 LSA, टाइप 5 LSA. ठीक है, 1 3 4 5, 2 नहीं है. Not all मंजीत, क्योंकि टाइप 2 LSA सिर्फ एरिया 0 में रहेगी. ये जो टाइप 2 वाला था ना अपना ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, वो इधर नहीं है एरिया 1 में. तो एरिया 1 में टाइप 1 ही चलेगी. टाइप 1, टाइप 3 जो बाहर से आ रही है, टाइप 4 जो ASBR का इंफॉर्मेशन लेके आ रही है, और टाइप 5 जो एक्सटर्नल रूट्स ला रही है. तो टाइप 1 3 4 and 5, 2 नहीं है. ओके, सो फाइन. नाउ आई विल मेक दिस this area 1 as stub area. तो मैं सबसे पहले क्या करूं, R1 पे जाता हूं. ठीक है जी, R1 पे गए. स्टब एरिया कैसे बनाते हैं, सी on R1 conft router OSPF 1 area 1 question mark. Now you'll see ऑथेंटिकेशन. अच्छा, ऑथेंटिकेशन जैसे EIGRP में हमने ऑथेंटिकेशन किया था, वैसे OSPF में भी कर सकते हैं. OSPF में ग्लोबल मोड पे भी, सॉरी राउटर मोड पे भी कर सकते हैं, ग्लोबली फॉर ऑल नेबर्स, एंड इंटरफेस पे भी कर सकते हैं अगर किसी स्पेसिफिक नेबर के साथ में करना है तो. अभी उसका कमांड देख लेंगे. डिफॉल्ट कॉस्ट
इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। फिल्टर लिस्ट, डिफॉल्ट कॉस्ट समझते हैं ना। सेट द समरी डिफॉल्ट कॉस्ट फॉर एनएसएसए स्टब एरिया। तो इन एरियाज में अगर मान लो कोई समरी जा रही है तो उसका डिफॉल्ट कॉस्ट क्या है। सो जस्ट लीव इट, इट्स नॉट something important. Filter list, filter networks between OSPF areas, इसकी भी बात करेंगे। NSSA, range, sham-link, stub, virtual link। तो हमारे काम की ऑप्शन अभी है stub। So area 1 stub question mark, okay। no summary आया एक ऑप्शन, do not send summary LSA into stub area। So this will make this area as totally stubby area। अगर मैं यहां पर नो समरी दे देता हूं तो ये बन जाएगा टोटली स्टबी एरिया, जहां पर LSA टाइप 3, 4, 5 सब बंद हो जाएगी। और अभी जब तक मैं ये नो समरी नहीं देता हूं, है ना, तो LSA टाइप कौन कौन सा बंद है? Come on guys, स्टब एरिया में कौन कौन सा LSA आते हैं? टाइप 1, टाइप 2 और भूल गए क्या? ऐसे ना भूलिए। Okay, so type 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, Priyanka is saying 7. Okay, see, I'll do area 1 stub. Okay, now what will happen? See, the very first thing that will happen is adjacency reset हो गई, neighborship जो है वो reset हो गई। किसके साथ? 4 और 3 के साथ। R1 का 4 और 3 के साथ में नेबरशिप रीसेट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अब R1 जब हेलो भेजा तो उस हेलो में स्टब फ्लैग को इनेबल करके भेजा, और क्योंकि R3 पे स्टब कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, R4 पे नहीं है, तो फिर वो फ्लैग मैच नहीं हुआ, तो यानी कि फिर ये नेबर नहीं बनेंगे। तो अभी फिलहाल जब मैंने R1 को स्टब घोषित कर दिया, एरिया R1 पे एरिया 1 को स्टब मैंने बोला, तो R1 के दोनों नेबर्स डाउन हो गए। अभी जब तक मैं R3, R4 पे जाके और कॉन्फ़िगरेशन स्टब वाली नहीं कर दूंगा, तब तक ये नेबर नहीं बनेंगे। सो राउटर OSPF 1 area 1 stub, the neighborship will come up R4. See, the neighborship came up on R3 with R1. Router OSPF 1 area 1 stub. So अब इसका भी neighborship R1 से आ जाएगा। अब ये स्टब एरिया हो गया है area 1। So let's check the database again. Show IP OSPF database। अब आपको यहां पर दिखेगी टाइप 1 एंड टाइप 3। टाइप 2 तो पहले ही नहीं थी, तो हटी क्या? टाइप 4 गई, टाइप 5 गई, ठीक है ना। तो एक स्टब एरिया में आपको टाइप 1, 2 और 3 ये 3 दिखते हैं सब। और अगर मैं इसको टोटली स्टबी एरिया बना देता तो 3 भी नहीं आती। अगर मैं इसको टोटली स्टबी बना देता, नो समरी अगर मैं लिख देता, तो ये समरी LSA भी नहीं आती, सिर्फ इस यहां पर दिखता आपको ये। वो भी करके देख लेंगे। लेकिन अगर अब इसको एरिया 2 पे जाना है 6666, तो ये कैसे जाएगा भाई? शो IP रूट OSPF, तो क्या 6666 इसको मिल रहा है? नहीं है, there is no 66। कैसे जाएगा ये 66 तक? आपको यहां एक चीज दिखेगी, अब ये एक नया रूट ऐड हो गया,
डिफॉल्ट रूट पॉइंटेड टुवर्ड्स R1, R1 की तरफ पॉइंटेड। तो R1 ने कहा कि तेरे को अपने एरिया में कहीं भी जाना है या किसी दूसरे एरिया में जाना है तो सब ओपन है, लेकिन अगर तेरे को एक्सटर्नल रूट्स पे जाना है तो उसके लिए ये डिफॉल्ट रूट ले लो, मेरे पास भेज दो। R1 बोल रहा है मेरे पास भेज दो, मेरे पास तो है ही इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं तो एरिया 0 का पार्ट हूं, उधर भी मेरा इंटरफेस है, तो आई डू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, डोंट वरी, आई विल सेंड इट आउट। सो लेट्स सी R1 पे है क्या, शो आईपी राउट OSPF। सो इस पे तो है ना, इस पे तो है, क्योंकि इसका एक इंटरफेस एरिया 0 में भी है, इसके पास में डेटाबेस जो है उसमें एरिया एक्सटर्नल रूट्स भी है, समरी LSA भी सब है, इसके पास कोई भी LSA रुकेगा नहीं। देखोगे आप अभी शो आईपी OSPF डेटाबेस, तो इसके पास में अभी भी सारे टाइप के LSAs है ना। आप यहां देखिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 है ना, एंड टाइप 5। Okay, so any doubt? All right, so one more thing, इसको टोटली स्टब ही बना के भी देख लेते हैं। conf router OSPF1 area 1 stub no summary, ठीक है। ये कमांड में लगाया, अभी क्या होगा, स्टब तो था ही, टोटली स्टब बना दिया मैंने, तो अभी कोई मैसेज आया नेबरशिप अप डाउन कुछ, नो नथिंग। लेट्स चेक ऑन R3, हैज समथिंग हैपन डेटाबेस में, देख रहे हैं आप, सिर्फ टाइप 1 और टाइप 3 में ये क्या दिखा रहा है, एक डिफॉल्ट रूट। टाइप 3 में क्या दिखा रहा है, डिफॉल्ट रूट। तो यानी कि समरी LSA जो पहले मुझे मिल रही थी, ये अब कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, खाली क्या मिल रहा है, इन सब रूट्स की जगह एक डिफॉल्ट रूट, ठीक है ना। तो शो आईपी राउट OSPF अगर आप देखोगे तो कोई इंटर एरिया रूट भी नहीं है, अब खाली मुझे सिर्फ मेरे एरिया वाले ही नेटवर्क्स दिख रहे हैं और IA रूट्स भी सारे खत्म हो गए, सिर्फ एक डिफॉल्ट रूट है मेरे पास। तो दिस इज टोटली स्टबी एरिया, सिर्फ ABR पे देना है आपको, ABR पे ही दिया ना हमने, एरिया 1 स्टब नो समरी। आपको ये नो समरी वाला जो है वो R3 पे या R4 पे देने का जरूरत नहीं है, ओनली ऑन ABR इफ यू गिव एरिया 1 स्टब नो समरी will work. Okay, any doubts, any questions? Will it have LSA2 who in case of broadcast network? हाँ, वो तो विद इन एन एरिया ना, इंट्रा एरिया LSA, टाइप 1 और टाइप 2 तो रहेंगे ही रहेंगे, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है जी। अब एक लैब करेंगे हम NSSA वाला, है ना। NSSA मतलब ये जो R6 है ये अभी ASBR है और नॉर्मल एरिया में, हम इसको स्टब एरिया बना देते हैं, है ना, हम इसको स्टब एरिया बना देते हैं। और स्टब एरिया बना के, स्टब एरिया बनाने से क्या होगा, स्टब एरिया का रूल क्या है कि ये राउटर रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, ये ASBR नहीं बन सकता, ये स्टब एरिया का रूल है। तो हम कहेंगे अच्छा 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 ASBR है तो स्टब मत बनाओ, इसे NSSA बना दो, नॉट सो स्टब एरिया, स्टब है बट उतना भी नहीं, है ना, ताकि टाइप 7 LSA इसको सपोर्ट कर पाए,
नहीं तो ये एक्सटर्नल रूट्स को इंजेक्ट ही नहीं करा पाएगा। So let's make it NSSA and let's have a look at type 7 LSA also. लगे हाथ। साथ ही साथ ये जो आपका ओके लेट्स डू दैट फर्स्ट, उसके बाद देखेंगे। तो R5 है इसका ABR, तो R5 पे गए और एरिया 2 NSSA और साथ में कुछ ऑप्शंस है। देखिए क्या ऑप्शंस है। डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट टाइप 7 डिफॉल्ट इन्फो इनटू NSSA एरिया। इससे क्या है, डिफॉल्ट रूट एक इंजेक्ट कर देता है ये। नो रिडिस्ट्रीब्यूशन इनटू दिस एरिया। अगर आप चाहें कि NSSA बना दूं लेकिन फिर भी रिडिस्ट्रीब्यूशन ना कर पाए तो भी ऑप्शन है, तो फिर NSSA बनाएंगे क्यों, फिर तो स्टफ भी बना देंगे। नो समरी, डू नॉट सेंड समरी LSA इनटू NSSA, दिस इज सेम, है ना। लाइक अभी ये टाइप 3 LSA टाइप 3 भी नहीं भेजेगा अगर आप नो समरी दे दोगे इस तो इस NSSA में, है ना। ट्रांसलेट LSA इसको एक बार छोड़ दो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, एरिया 2 NSSA एंटर। अब क्या होगा, अभी फिर से वही इसका एडजेसेंसी गया, R6 पे जाएंगे, इस पे भी ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एरिया 2 NSSA, तो काम बन जाएगा। ये दोनों फिर से नेबर बन जाएंगे। ओके सो सी इट्स नाउ अप। ओके नेबर 6666 लोडिंग टू फुल लोडिंग डन। ओके इस पे क्यों नहीं आया, हाँ ये भी आ गया। ओके सो नेमशिप अप हो गया। अभी इस पे डू शो IP OSPF डेटाबेस देखेंगे तो क्या क्या दिखाएगा। टाइप 1 LSA, टाइप व्हाट इज दिस नेटवर्क लिंक, दिस इज अगेन टाइप 2 LSA, क्योंकि इधर आपको दिख रहा है द लिंक बिटवीन R5 एंड R6, दिस इज अ ब्रॉडकास्ट लिंक अगेन फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे, तो टाइप 2 LSA दिखेगा आपको R6 पे। देन कम्स टाइप 3 LSA and here is type 7 LSA, right? Type 7 LSA ये R6 is generating advertising, और जब आप जाके R2 पे देखोगे show IP OSPF database, तो R2 पे आपको R7 ये LSA टाइप 7 दिख रहा है क्या, टाइप 5 दिख रहा है ना। वेट, type 1 is there, type 2 is there, type 3 is there, type 4 is there, and type 5 is there, right? But there is no type 7. Okay, so type 7 जो है उसको ये जो ABR होता है, यानी कि यहाँ जो R5 है वो कन्वर्ट कर देता है टाइप 5 में। टाइप 7 जो R6 भेज रहा है R5 के पास पहुंचा, R5 ABR है, उस टाइप 5 को टाइप 7 को टाइप 5 में कन्वर्ट करके और फिर R2 को भेज रहा है। तो LSA टाइप 7 सिर्फ और सिर्फ NSSA में दिखेगा आपको, NSSA से बाहर टाइप 7 नहीं दिखेगा, उधर टाइप 5 में कन्वर्ट होके जाएगा। एनी डाउट? ओके R5 पे देख लो, डू शो IP OSPF database, so type 1, type 2, type 3, type 1 2 3 3 7, ओके 7 इस पे दिख रहा है, ठीक है ना। इससे आगे 7 को 5 में कन्वर्ट करके ये भेज देगा, फिर नहीं दिखेगा। ये देख रहे हो, यही जो इसको मिल रहे हैं 7 से, उनको ये कन्वर्ट कर दे रहा है 5 में। 7 कौन भेज रहा था, R6, और 5 कौन कन्वर्ट किया, ये खुद।
R5. Okay. Now the next thing is NSSA हो गया, स्टब एरिया हो गया, है ना, इधर से अपडेट वो सब हो गया. समराइजेशन भी कर लेते, रूट समराइजेशन. तो समरी जो है वो हमने बात करी थी, या तो हम ASBR पे कर सकते हैं समराइजेशन, या हम ABR पे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं. हम इस ABR पे भी कर सकते हैं, R1 पे. R1, R5 और R6 इन 3 राउटर्स पे समराइजेशन हो सकता है और किसी भी राउटर पे नहीं हो सकता. तो लेट्स डू इट ऑन R6 फर्स्ट. बहुत समय हो गया है मुझे समराइजेशन किए हुए OSPF पे, तो लेट मी फिगर आउट क्या था उसका कमांड. समरी एड्रेस, अच्छा जी यही है जी. देखते हैं, 2 कमांड है, एक ABR पे अलग चलती है, ASBR पे अलग चलती है. तो 6.6. लेट्स से 0.0 समरी मास्क 255.255.0.0 है ना. और do not advertise when translating OSPF type 7 LSA. नहीं ठीक है, एंटर. अभी देखते हैं R5 पे जाके कि उधर रूट में क्या दिखा रहा है. Do show IP route OSPF. तो 5.6 का जो है ये आप देख रहे हैं, this one. So this is N1, right? So what is N1? See, N1 is OSPF NSSA external type 1, and N2 is OSPF NSSA external type 2 routes. Okay, so N1 क्यों है? क्योंकि हमने टाइप 1 दे रखा था वहां रीडिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे. अगर नहीं दे रखा होता तो N2 टाइप होता. ओके, और ये क्या है? ये समरी रूट है. ठीक है जी, 6600 यही हमने समरी रूट डाला था. तो एनी डाउट, यू विल गेट ओनली दिस समरी रूट ऑल द वे. R5 हो चाहे R2 हो, शो IP route OSPF. Okay, here also you will get a summary route. Okay, now this is not N1. N1 जो है वो वही था, यहाँ क्या हो गया, वो E1. तो so just ये है ना, ये चीजें नोट करते जाना. जब NSSA वाले ABR पे आया तो N1 दिखा रहा है क्योंकि वो टाइप 7 LSA से आ रहा है, और फिर जब कन्वर्ट होके आता है तो टाइप 5 LSA से टाइप ये E1 दिखाता है. E whatever, E1 or E2 whatever, but it will show with an E. Okay, तो वो समरी रूट उधर लग गया ASBR पे. अभी उसको हटा देते हैं, नो समरी एड्रेस दिस, और फिर यहाँ चेक करते हैं. तो आपको यहाँ पर ये देखिए तीनों अलग अलग रूट्स मिल गए. ओके, तो ये ASBR पे समराइजेशन बड़ा इजी. अभी ABR पे करके देखते हैं. R5 पे करेंगे तो R5 पे करेंगे. ठीक है, तो राउटर OSPF1, अब इसका कमांड क्या है वो देखना पड़ेगा. एरिया, ऑटोकॉस्ट, कैपेबिलिटी, कंपेटिबिलिटी फॉर okay, so I think एरिया 0 नहीं, इधर तो समरी रूट नहीं आएगा. ये जो बाकी कमांड्स है ना, ये जब आप देखते हो क्वेश्चन मार्क लगा के, तो ये देखा करो. जैसे डिस्टेंस है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चेंज करने के काम आती है कमांड, है ना. ये है जैसे मैक्सिमम पाथ,
तो मैक्सिमम कितने पाथ्स पे लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं ये, नेबर मैनुअली नेबर एडवर्टाइज करने के लिए। ये टैग वैग हम देखेंगे, आगे देखेंगे जब रिडिस्ट्रीब्यूशन हम और डेप्थ में पढ़ेंगे। And तो इधर नहीं, इंटरफेस पे देखते हैं। इंटरफेस सीरियल 0/1 आईपी ओएसपीएफ प्रायोरिटी नेटवर्क मैसेज ओएसपीएफ 1 एरिया 0 नहीं आईपी समरी एड्रेस तो EIGRP के लिए है। लेट्स चेक मैन। Okay, so it's coming up. एरिया 1 रेंज, वेरी गुड वीरेंद्र, यही है। एरिया 1 एरिया 0 में डाल रहे हैं ना अभी हम। एरिया 0 रेंज आईपी एड्रेस टू मैच 6.6.0.0 255.255.0.0 advertise this range, cost metric भी define कर सकते हैं, not advertise, do not advertise this range, and let's see. So let's go to R2, show IP route OSPF। नहीं, इससे तो काम हुआ नहीं। कुछ गलती की है हम। एरिया 1 में है ना, ये एरिया 2 में है ना। हाँ ओके, no it's not working। 6.6.0.0 this range is okay, whatever, it's not a big deal, it's just a command। अभी चेक कर लेंगे। नहीं होता है तो विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट। अभी नहीं तो फिर मैं आपको कल बता दूंगा। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी, लाइक वी डिड ऑन ASBR ना। वो कमांड अभी एक बार सिंटेक्स मिल जाएगा तो कैन बी डन in just a minute। So let's move to the next thing, which is so okay, so the next thing is, अगर हमारे पास में नॉन हायरार्किकल डिजाइन हो
एरिया 0 से कनेक्टेड है एरिया 1, एरिया 1 से कनेक्टेड है एरिया 3, ऐसा हो तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, है ना। तो एक पहली चीज तो आपको मैं बता दूं, एक रूल है कि एक ओएसपीएफ डोमेन में, एक ओएसपीएफ एरिया में जितने भी राउटर्स होंगे उन सभी का डेटाबेस जो है वो सेम होना चाहिए। इन वन ओएसपीएफ एरिया all routers will have same database. This is a rule. डेटाबेस चेंज नहीं होगा, एक एरिया में सभी राउटर्स का डेटाबेस सिमिलर होगा। ओके, सो ये रूल मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे एक चीज याद आई, रूट फिल्टरिंग। जब हमने EIGRP में रूट फिल्टर किया था, what we did in route filtering, we filtered a route to get into a router's routing table. जैसे ये जो राउटर है R2, ये R2 का राउटिंग टेबल में, या फिर ये जो R4 है, लेट्स से R4 का राउटिंग टेबल में 2222 जो इसका लूप बैक एड्रेस है R2 का, वो नहीं आया। I don't want R2's loop back address in R4's routing table. This can be done by route filtering. तो रूट फिल्टरिंग EIGRP में बड़ा इजी था, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगा के हमने रूट फिल्टरिंग करवा दिया था, है ना, मैच करवा के आईपी एड्रेस। नाउ विल दिस कैन इट बी डन इन OSPF आल्सो, कि R4 के पास में ये रूट 2222 आए ही नहीं। तो देखो, अब ये रूल याद रखना, R3 में तो I need R2's loopback address, but I don't want it in R4. रूल सेज कि एक एरिया में सभी राउटर्स का डेटाबेस जो है वो सेम होना जरूरी है, सेम ही होगा। ओके, सो ये कहा, अच्छा तो मतलब इसमें 2222 नहीं चाहिए, इसमें चाहिए, तो फिर तो डेटाबेस अलग हो गया। बोला देखो ऐसा है, हाँ डेटाबेस सेम चाहिए, तो फिर ये फिल्टरिंग होगी तो दोनों में होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब फिल्टरिंग जब करवानी है तो चलो कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे। तो क्या किया कि डेटाबेस वाला जो रूल है वो भी इंटैक्ट रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, डेटाबेस सेम रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी फिल्टरिंग करवा दें। तो उसके लिए क्या किया कि डेटाबेस में तो 2222 आएगा, लेकिन डेटाबेस से राउटिंग टेबल में जब वो रूट ले जा रहे हैं तब वहां चुरा लेंगे, है ना जी। तो डेटाबेस विल रिमेन सेम, 2222 network, the router 2's loopback interface IP that will present in database of R4 and R3 both routers, but when R4 bring that network from its database to routing table, in that at that time we'll filter it. So this is how it can be done. So let's do it, है ना। So कैसे करेंगे, let's go to R4. I think this is a stub area. So show IP route OSPF 222, हाँ ये तो बता देते हैं, राउटर OSPF 1 no area 1 stub. Let's do it in R3 also. And R1. Okay. Now these routers should get all the LSA types, है ना, टाइप 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, सब आ रहा है, ठीक है जी। Now R3 के डेटाबेस में show IP route OSPF 2222 is there,
in R3's routing table, and it will also be there in R4's routing table, है ना, दोनों के routing table में है। ठीक है जी। तो अब मैं R4 पे ये नहीं चाहता, तो मैं क्या करूंगा, मैं रूट फिल्टरिंग के लिए R4 पे राउटर OSPF1 में गया, है ना, इधर मैं डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगाता हूं, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। नाउ आई हैव टू क्रिएट एन एक्सेस लिस्ट विद डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, है ना। तो आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड फिल्टर, फिल्टर नाम से मैंने एक एक्सेस लिस्ट बना दी। परमिट, इस रूट को तो मुझे क्या करना है, डिनाई करना है, बाकी सब परमिट हो, है ना। तो डिनाई 2.2.2.2 एंड परमिट एनी, इसको राउटर OSPF में जाके डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट and access list name and in or out R4 पे अंदर आ रही है, which interface, serial 0/2, अच्छा अभी क्या होगा आप लोग बताइए, अभी क्या ये 2222 इसका राउटिंग टेबल से निकल गया या फिर कुछ और हो गया। हमने किया क्या है, डू शो एक्सेस लिस्ट दिखा देता हूं मैं, दिस एक्सेस लिस्ट, oops ओके नो वरीज, अभी भी आप बताइए, दिस इज एक्सेस लिस्ट, इसमें मैंने ये मैच कर दिया और फिर डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के साथ में इसको लगा दिया सीरियल इंटरफेस 0/2 पे। क्या अब इसकी राउटिंग टेबल में 2222 दिखेगा या नहीं, यस और नो? फास्ट, नो, ओके, Karan says no, Virendra yes, okay, बाकी लोग सो गए सब, ओके ओके, मंजीत यस, पुष्कर नो, अमीशा नो, नो, some config is needed in OSPF to make it effect, okay, no no no, okay, so 2222 ज्यादातर जो बहुमत है वो है नो के साथ। लेट्स चेक इट आउट, डू शो IP OS IP root OSPF, yeah, so R3 में है क्या, बिल्कुल है। तो क्या R4 के डेटाबेस में है क्या, डेटाबेस में तो क्या कहा था, अगर R3 के डेटाबेस में है तो R2 के डेटाबेस में होना ही पड़ेगा, which is there, है ना। हमने डेटाबेस में आने से नहीं रोका, हमने R जो इसका राउटिंग टेबल है उसमें जाने से उस रूट को रोक दिया। इज दिस क्लियर?
है ना. It's very simple, just like AIGRP, but there is a logic, there is a concept behind route filtering in OSPF. So just remember that. Sometimes इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि अगर मैं रूट फिल्टरिंग कर रहा हूं तो वो राउटिंग टेबल में दिखेगा, डेटाबेस में दिखेगा, नहीं दिखेगा. सो दे कैन मेक यू अ लिटिल नर्वस, कंफ्यूज कर सकते हैं. ओके, ऑलराइट. सो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर दिस थिंग, नॉन हायरार्किकल ओएसपीएफ नेटवर्क डिजाइन. किसी को कोई डाउट हो तो लिख देना सब, ठीक है. सो नॉन हायरार्किकल नेटवर्क डिजाइन बना लेते हैं पहले, है ना. अभी फिलहाल तो हायरार्किकल ही है, एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2. नाउ व्हाट विल डू इज एरिया 0, एरिया 1 और इसको एरिया 2 बना लेते हैं इधर, है ना. ये जो R1 R5 का जो लिंक है, इसका जरूरत नहीं है ना. विल और let's do it like this, guys. This is R5, okay, and this R5 is in area 3. Okay, so this interface of router 4 will be in area 3 now. Okay, so it will be like this. I don't know, I am very bad at it, bad at this DNS thing, so I don't know. लोग बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाते हैं, बट आई एम रियली बैड एट इट. नो प्रॉब्लम, जब तक समझ में आ रहा है तब तक ठीक है. राइट. सो दिस R6 से कोई लेना देना नहीं है अभी. अभी the scene is like this. This is area 0. Okay, this is area 1 and this is area 2. Okay, it's like this. ये जो कनेक्शंस है ना, R3 R5 का कनेक्शन तो पहले ही बंद था, ये वाला जो है इसको बंद कर देते हैं, then all is well. So let's go to R5. R5 का सीरियल लिंक कौन सा है ये? This interface is serial 0 by 1. Okay, serial 0 by 1. So let's shut it down. इंटरफेस सीरियल 0 by 1 शट डाउन. अभी फिलहाल के हिसाब से शट डाउन करने पर क्या होएगा, R2 से इसका नेबरशिप डाउन हो गया, यू कैन सी. एंड शो आईपी राउट OSPF में क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं, खाली R6 से जो इसको रूट्स दिख रहे हैं ना, वो रूट्स है. तो R6 वाला इंटरफेस भी बंद कर देते हैं. कॉन्टी इंटरफेस 0 by 0 एंड शट डाउन. सो शो आईपी राउट OSPF कुछ नहीं है, शो IP OSPF नेबर, कोई नेबर नहीं है, नथिंग. बट व्हाट आई विल डू नाउ इज आई विल कॉन्फ़िगर दिस इंटरफेस R4 और R5 के बीच वाला. तो ये इंटरफेस कौन सा है? दिस इंटरफेस इज सीरियल 0 by 1 on R4 and 0 by 2 on R5. So this is serial 0 by, okay, and this middle one is serial 0 by 0 and this is serial 0 by 1. Correct? 0 by 2, 0 by 1. Okay. So let's configure serial 0 by 2. Show IP interface brief. ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होगा, 0 by 2 है ना, 45.5. ठीक है. तो conf t राउटर OSPF1 इसको हटाई देते हैं, नया बना देते हैं. नो राउटर OSPF1, फिर से लगा दो राउटर OSPF1.
नेटवर्क 10.1.45.0 और ये कौन से एरिया में जाएगा भाई? विल गो इन एरिया 2 और R4 पे चलते हैं अभी। R4 पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर दें। R4 पे गए और इस पे इंटरफेस सीरियल 0/1 है ना। सीरियल 0/1 इज ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड एंड उसको एडवर्टाइज करवा देते हैं। नेटवर्क 10.1.45.0 एरिया 2 बन गए नेबर। भाई ये तो नेबर ही बन गए। दीज आर नेबर्स नाउ। नेबर है तो डेटाबेस वगैरह सब एक्सचेंज करेंगे ही ये, है कि नहीं? R4 जो है इसकी राउटिंग टेबल तो देखे ही थे, शो आईपी राउट OSPF। इसकी राउटिंग टेबल में ये सारे रूट्स हैं। कौन कौन से रूट्स है? 10.1.12.0 विच इज इंटर। अरे इसके पास रूट्स कहाँ गए? शो आईपी OSPF नेबर। इट इज नेबर विद 1 and 5। 1 के साथ नेबर है तो 1 से इसके पास में। अच्छा 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 अच्छा। हाँ ठीक है। अभी और नेटवर्क्स रही कहाँ गए? ठीक है। 3 वाला क्यों नहीं आ रहा है इसकी टेबल में? आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है ना। वो हटा देते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। राउटर OSPF1 नो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट फिल्टर। नहीं नहीं नहीं, लिस्ट इन आउट क्या था? OSPF do show ना, वो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट हटा के और लेट्स डू इट नो। ओके हट गया। नाउ व्हाट एल्स? इसकी राउटिंग टेबल में आ गया शो आईपी राउट OSPF network 2। okay, so 2 is there, 12 is there, okay, and 3 is coming and 1 is coming, so we are good, we are getting OSPF routes। तो R4 पे है routes, ठीक है। R2 के routes R4 तक आ रहे हैं। This is a normal area, this is a backbone area। तो R5 और R4 भी नेबर बन गए, तो R5 पे हैं क्या routes? Let's check। R5 show IP OSPF neighbor। नेबर तो है फुल। रूट्स भी होंगे? नहीं है, ठीक है जी। देयर आर नो राउट्स। व्हाई? बिकॉज टाइप करो। आई एम लुकिंग फॉर एन आंसर फ्रॉम यू। Any communication will happen via area 0, not connected to area 0। Who is not connected to area 0? एरिया 0 से कनेक्टेड नहीं है। कौन नहीं कनेक्टेड है? R5, R4, R5 कनेक्टेड नहीं है एरिया 0 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। R5 जरूरी नहीं है एरिया 0 से कनेक्टेड हो। क्या R4 एरिया 0 से कनेक्टेड है? नहीं है, तो R5 का भी जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि अब ये जो राउटर है ये ABR रोल में आ गया, R4 इज नाउ ABR। सो
एबीआर का एक इंटरफेस एरिया 0 में होना जरूरी है, यानी R4 जो है उसका इंटरफेस एरिया 0 में होना चाहिए था, जो कि अभी नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, सो क्या किया जाए? तो हमने देखा इसका सॉल्यूशन क्या है, वर्चुअल लिंक बना दो या फिर जीआरई टनल बना दो। ये दो तरीके हैं, इधर जीआरई टनल, डिफाइन ए जीआरई टनल फ्रॉम R4 टू R1, इस एबीआर से इस एबीआर के बीच में एक टनल बना दो, और ये उससे ये लगे इसको R4 को टनल से कि मैं डायरेक्ट जो है वो एरिया 0 से ही जुड़ा हुआ हूँ, वो जो टनल इंटरफेस होगी ना इसकी, वो एरिया 0 में एडवर्टाइज करवा। सो वर्चुअल लिंक का बात करते हैं, R4 पे आते हैं। लेट्स कम टू R4। conf t router OSPF1 एरिया, कौन से एरिया के लिए वर्चुअल लिंक कौन से एरिया में जाएगा? एरिया 1 पे ही ट्रेवल करेगा। वर्चुअल लिंक, हाँ अभी देखो वर्चुअल लिंक किस किस के बीच में बनेगा? एसोसिएटेड विद वर्चुअल लिंक नेबर, ठीक है ना। उसका नेबर कौन है भैया? नेबर कौन कौन बनेगा? 1111 ही बनेगा वर्चुअल लिंक का नेबर। 1.1.1.1 राउटर आईडी, ठीक है जी। कोई ऑथेंटिकेशन है? नहीं है कोई ऑथेंटिकेशन। एंटर, और R1 पे चलते हैं। एरिया 1 वर्चुअल लिंक 2.2.2.2, ये क्या आ रहा? OSPF एरर रिसीव्ड इनवैलिड पैकेट मिसमैच एरिया आईडी फ्रॉम बैकबोन एरिया मस्ट बी वर्चुअल लिंक बट नॉट फाउंड फ्रॉम दिस। फिर ये एरर आया, रिसीव्ड इनवैलिड पैकेट मिसमैच एरिया आईडी फ्रॉम बैकबोन एरिया मस्ट बी वर्चुअल लिंक बट नॉट फाउंड फ्रॉम 4। हाँ क्या है, गलती कर दी है ना हम, I made a mistake. Okay, so this error message is saying received invalid packet mismatch area ID। तो हम लोग इधर क्या दिए थे? एरिया 1 ही डिफाइन किए थे ना इधर R1 पे। दिस इज एरिया 2 ना। लेट्स गो टू R4, वही किए थे ना। सेक्शन SPF, okay, so one link is in area 1। oh अरे रे क्या गलती करते हैं हम, R1 पे हैं अभी हम, 2 थोड़ी 4 है ना, वो 4 R4 है। ओके, सो जैसे ही मैंने सही दिया वैसे ही देख रहे हैं आप OSPF वर्चुअल लिंक 1 नेबर बना है एक OSPF वर्चुअल लिंक पे, नया नेबर वर्चुअल लिंक पे, डू शो IP OSPF नेबर। सी now it has 4444 as neighbor twice, one is over virtual link, one is over serial link। ठीक है जी, तो नेबर बन गया, वर्चुअल लिंक बन गया, R4 जो है उस पे भी सेम यही हो गया है ना, ये नेबर बन गए। तो क्या अब R5 पे रूट आ गया ये सब कारनामे करने से? ये देखो है ना, अब आ गया सब। और सारे जो है वो इंटर एरिया रूट्स हैं, है ना, क्योंकि एरिया 2 में नहीं है ये, या तो एरिया 0 में या एरिया 1 में है। ठीक है भाई लोग, एनी डाउट? वेरी सिंपल, वर्चुअल लिंक कमांड लगाया, एरिया 1 वर्चुअल लिंक 1111,
R4 पे R1 का राउटर आईडी दे दिया, R1 पे R4 का राउटर आईडी दे दिया, दोनों वर्चुअल। अगर इनके बीच में और भी राउटर हुए ना, यहाँ एक राउटर, दो राउटर, 10 राउटर, तो भी बन जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, आपको कुछ एडिशनल नहीं करना है। ओके, वर्चुअल लिंक विल मेक ऑन एबीआर, हाँ एबीआर पे बनाना है और एबीआर पे बनाए हैं, है ना। राउटर आईडी वीरेंद्र, ओके ओके, ऑलराइट, सो दिस इज डन। और वो जीआरई वाला जो है वो करके देखें क्या, वो किए हुए बहुत टाइम हो गया, लेट्स ट्राई इट आउट। सो लेट्स रिमूव दिस नो एरिया वन वर्चुअल लिंक, ये भी रिमूव कर देते हैं। ओके, सो एग्जिट इंटरफेस टनल वन, वट एवर, एक टनल इंटरफेस बनाएंगे, जीआरई टनल बना रहे हैं हम लोग, है ना। टनल सोर्स, टनल सोर्स कौन सा इंटरफेस है, इंटरफेस भी दे सकते हैं, आईपी भी दे सकते हैं, मैं अभी आईपी आईपी देता हूँ। हाँ, तो इसका आईपी क्या है, 10.1.14.1। टनल डेस्टिनेशन, टनल डेस्टिनेशन क्या है साहब, 10.1.14.2। अच्छा, ये तो सेम ही लिंक पे हो गए ना टनल, इसमें तो क्या है, टनल मोड, जब कोई मोड नहीं दे रहे तो बाय डिफॉल्ट ये क्या लेता है, जीआरई। तो जीआरई आईपी, तो वैसे भी वही लेता है, ये कमांड दे नहीं दे एक ही बात है। आईपी एड्रेस, टनल का आईपी एड्रेस भी एक देना पड़ता है। अब क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट लिंक पे कभी मैं टनल बनाया नहीं, बना के देख लेते हैं। आईपी एड्रेस टनल का दे दिया हमने 10.1.114.1, ओके। और राउटर ओएसपीएफ में जाके आपको ये नेटवर्क एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब नेबरशिप इनके बीच में बनेगी। Let's see how it goes. Router OSPF1 network 10.1.114.0, और इसको किस में एडवर्टाइज करवा दूंगी, जियो में। अब चलते हैं R4 पे। एग्जिट इंटरफेस टनल 1, टनल सोर्स 10.1.14.4, टनल डेस्टिनेशन 10.1.14.1, टनल मोड GRE IP address 10.1.114.4, router OSPF1 network 10.1.114.0, टनल पे तो ये नहीं बने, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, exclude unassigned, tunnel is up, है ना। एरिया 0 ही देंगे या क्या देंगे, 0, ओके। एंड R4 and R1 ना, so
टनल सोर्स, टनल डेस्टिनेशन। अच्छा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन जो है ना, वो लूप बैक भी दे सकते हैं। टनल सोर्स लूप बैक, टनल सोर्स बैक, टनल डेस्टिनेशन is tunnel destination is 4.4. Show interface tunnel 1. So tunnel interface is, oops, up, and this is its IP, tunnel source, tunnel destination, tunnel source and uh, source for this, गलत दे दिया ना, show tunnel 1, destination 1 होगा, tunnel 1, टनल डेस्टिनेशन 1111। ओके, इधर तो ठीक गया है ना, टनल डेस्टिनेशन 1 सोर्स, ठीक है। तो हाँ, ये देखो, ये नेबरशिप आ गई अब, टनल 1 लोडिंग फ्रॉम दिस। तो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर जब कमांड चलाएंगे तो अभी 1 के साथ में दो नेबरशिप आ गई, एक टनल 1 इंटरफेस पे और एक सीरियल पे, है ना। तो शो आईपी राउट ओएसपीएफ जब चलाएंगे, सारे राउट आ रहे हैं, और आप भी कैसे रहे, जैसे इसी नहीं, R5 पे चेक करना है ना, R5, R5 पे शो आईपी राउट ओएसपीएफ, इधर आ रहे सारे routes, ठीक है। तो हमने क्या किया, शो रन इंटरफेस टनल 1, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है टनल इंटरफेस का, टनल source, tunnel destination, IP address, and we have to advertise this IP address in OSPF so that they can form neighborship, neighborship बना ले उसके लिए, right? So that's it for the day. कल हम इसमें कुछ और छोटी मोटी चीजें हैं जो पढ़ेंगे, छोटी मोटी जब मैं कह रहा हूँ, देखो OSPF नेटवर्क टाइप है जो इम्पोर्टेंट है, network type, when I'm saying it's different network types, जैसे आप देखेंगे अभी R1 पे, तो शो एक कमांड है, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेसेस, है ना। तो आप इंटरफेस देखेंगे ओएसपीएफ में कौन कौन से इंटरफेस है R1 पे, दिस इज R1, सो दिस एंड दिस, थ्री इंटरफेसेस, है ना, I have 0x0, serial 0x1, 0x2, so and tunnel also now. सो टनल इंटरफेस का नेटवर्क क्या है, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है ना। एक वर्चुअल लिंक वाला बना है, वो भी दिखा रहा है, वो डाउन हो गया अभी। या फास्ट इथरनेट इंटरफेस, इसमें नेटवर्क टाइप क्या दिखा रहा है, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो हम लोग यही कहते आ रहे बार बार कि फास्ट इथरनेट इंटरफेस, नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट, है ना। हाँ, अब एक और चीज यहाँ पर आ गई, लूप बैक इंटरफेस। तो इसमें नेटवर्क टाइप क्या है जी, लूप बैक। ये क्या है, इसका तो हमने नाम लिया ही नहीं कि लूप बैक टाइप का भी कोई नेटवर्क होता है ना। सीरियल इंटरफेस, पॉइंट टू पॉइंट, है ना। तो थोड़ा सा इस पे और देखेंगे, और साथ ही में ओएसपीएफ के कुछ और एक दो लैब हम लोग करेंगे, थोड़ा थोड़े बहुत कुछ टॉपिक्स हैं, I'll figure it out. So any doubts till now, any questions?
Okay, there is a question. Can you please explain if one OSPF process is used within another OSPF process and how it works? तो OSPF प्रोसेस जो होते हैं ना, प्रोसेस एक ही राउटर पे आप दो OSPF प्रोसेस चलाओ, राउटर OSPF 1 तो चला ही रखा है, 2 भी चला दिया, ठीक है जी। तो प्रोसेस 2 में आप अलग हिसाब किताब चलाओ, ठीक है जी। और आप ये भी कर सकते हो कि OSPF 1 में ये नेबर्स है प्रोसेस में, OSPF 2 में ये नेबर्स है, OSPF 1 में ये नेटवर्क एडवर्टाइज है, OSPF में ये नेटवर्क एडवर्टाइज है। आप OSPF प्रोसेस 1 वाले रूट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो OSPF प्रोसेस 2 में। इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर, जिसमें आप अपना कब यूज करते, क्या करते, इस पे तो हम कल चर्चा करेंगे। एक बार अगर आप लोगों को टाइम हो तो अलग अलग प्रोसेस बना के थोड़ा सा कोई भी सिंपल सी लैब ले लेना, ऐसा ही लैब डिजाइन कर लेना और उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, उसको देखो एक्चुअल में क्या है, उसका डेटाबेस देखो, उसमें ये देखो कि भाई प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस आईडी लोकल सिग्निफिकेंट होता है, तो आपके नेबर को तो कोई लेना देना नहीं है आपकी प्रोसेस से। लेकिन चूंकि एक प्रोसेस में मैं R1 से R5 को नेबर बना रहा हूँ, दूसरे प्रोसेस में मैं R1 से R2 को नेबर बना रहा हूँ या व्हाटएवर राउटर, तो इस केस में मेरे ये जो राउटर है इसका OSPF टेबल कैसा दिखता है ना। और क्योंकि मैं दोनों अलग अलग प्रोसेस है, तो क्या मेरे पास में ये OSPF प्रोसेस 2 वाले नेबर से OSPF प्रोसेस 1 वाले नेबर पे रूट्स जा रही है क्या? बाय डिफॉल्ट वैसे जाएंगे नहीं, मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया, फिर भी एक बार देखना करके कैसा होता है। हम इसके बारे में कल पढ़ लेंगे और इसको भी उठा लेंगे टॉपिक, है ना। और कुछ, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, but if we call OSPF process within, हाँ ये इसको कल पढ़ेंगे सविंदर, don't worry. Okay, so because I do have a meeting in some time, so we cannot take this right now. All right then, guys, if there is no further questions, then we are done for the day. Thank you so much for joining the session. Hope this has been informative. Good night.